Good afternoon, all. Good afternoon, sir. Afternoon, sir. Yeah, good afternoon. Yeah. So in the last part of vectors, we discussed about some two rules about triangle rule and in triangle like in sine rule and cosine rule. Okay. So in the next part, we'll discuss how we'll use these rules to add two vectors. So in mathematical way of vector addition, we are basically having two methods. One is known as something but triangle rule of vector addition, and another one is known as something but a parallelogram rule of vector addition. So first we'll discuss about this triangle rule of vector addition. So you can write the heading triangle rule. I can't see No, your we cannot see the screen. screen sharing. Okay, screen I just 1 minute. So you can write triangle rule of vector addition. So in this triangle rule of vector addition, so it is same as like that normal pictorial representation of vector addition only, but we are representing in terms of sides of a triangle. That's why it is known as something but a triangle rule of vector addition. Okay. So over here, when two vectors represent successive sides of a triangle, then we can find out what about the value of a resultant vector by using this method. Like assume that we are having a vector, let's say a vector, and another vector, take it as b vector. The first step, we need to identify what about the angle between the vectors. So just remember that angle between the vectors is angle between them when their tails are connected together. So angle between the vectors is angle between them when their tails are connected together. So to connect their tails, like we can just draw this vector a vector as it is over here, and we can take this b vector and we can keep the tail of b vector in contact with the tail of a vector. So if I'm taking this b vector and we are connecting this b vector in contact with a vector, so we can observe that the situation will be something like this. So when their tails are connected together or when their heads are connected together, then the angle between Sir, but vectors before we is were not. connecting the head of A vector to the tail of B vector, no? बेटा हम लोग इसको ऐड नहीं कर रहा है, ठीक है. टेल टू टेल कनेक्ट किया है टू फॉर एडिशन के लिए नहीं है, टू फाइंड आउट व्हाट अबाउट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. Okay. Okay.
सो फर्स्ट हम लोग को एंगल फाइंड आउट करना है, फिर ऐड करते हैं. ओके Okay. तो एंगल बिटवीन द वेक्टर इज एंगल बिटवीन them व्हेन देयर टेल्स आर कनेक्टेड. सो दोनों का टेल कनेक्ट करके रखेगा तो दिस वन इज नोन एज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. ओके तो कोई भी सिचुएशन में हमेशा याद रखना है एंगल बिटवीन द वेक्टर इज एंगल बिटवीन them व्हेन देयर टेल्स आर कनेक्टेड together or when their heads are connected together. Like we can take an example. Suppose if you are having a vector, let's say a vector, and another vector, it's something like this, let's say b vector. And let's say if this angle is given as something but 120 degree. So what is the angle between the vectors? 60 degree. 60 Yeah, degree. 60 degree. Got it? So this is not the angle between the vectors 120 because एक वेक्टर का हेड है और दूसरा वेक्टर का टेल है. सो हेड और टेल एक साथ कनेक्ट करके एंगल हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकता. What we have to do is we need to connect the tails of this vector together. To connect the tails of this vector together, what we can do is we can just let's extend this vector a vector because we know that if you are displacing a vector parallel to itself, it will not make any difference. तो अगर मान लो हमने इसका a vector को इस तरफ displace कर दिया, so we can write this angle between them will be equal to 60. So 60 degree will be the value of angle between the vectors, not 120 degree. तो हमेशा याद रखना है angle between the vector is angle between them when their tails or when their heads are connected together, not when tail is connected to head. Okay. Now we'll discuss about the addition part. So let's say if you are having a vector a vector and another vector, take it as b vector, and angle between this a vector and b vector we can just take it as when their tails are connected together. Let's say angle between them is equal to theta. अभी हम लोग देखते हैं ये दोनों वेक्टर को ट्रायंगल रूल यूज करके कैसे ऐड करना है. तो इट सेम एज लाइक दैट नॉर्मल पिक्चोरियल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन ओनली. तो पहले हमने ए वेक्टर इसको ऐसा ड्रॉ किया. Now we'll take the b vector in such a way that tail of b should be in contact with the head of a vector. So we can say that the third side or a vector is starting from the tail of first vector to the head of last vector is going to give the value of resultant vector. ये तो हमको पता है, right? So आप देखो इधर we are getting a triangle. So that's why they are using a triangle law. तो इसको क्या है कि triangle rule का सबसे हम लोग ऐसा लिखता है if two vectors are represented successive sides of a triangle. तो ये successive sides of triangle रखा है ऐसा. Then the third side taken in opposite direction. मतलब third side है तो हम लोग अगर मान लो मैंने इधर से स्टार्ट कर रहा है तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो इस तरफ ये डायरेक्शन में c नहीं लिया है, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में c लिया है. ओके और r लिया है. तो द थर्ड साइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन गिव्स द सम ऑफ these two vectors or the resultant vector. So this is nothing but a triangle rule of vector addition. Got it? इसमें कुछ डाउट है? Sir. So just write down this one. First पहले आप ये डायग्राम ड्रॉ करो a and b. पहले ये दोनों आप इंडिपेंडेंटली ड्रॉ करना है a और b ये डायग्राम. उसके बाद वो दोनों का टेल कनेक्ट करके एंगल आप दिखाना है. So over here when their tails are connected together, so this is known as the angle between vectors. इसके बाद आप a डायग्राम ड्रॉ करना है. There we are showing how we are adding it by using triangle draw. तो हमेशा याद रखना जो रिजल्टेंट का ऑर्डर है और a और b का ऑर्डर है वो अलग रहता है. a और b सेम ऑर्डर पर रखा है एंड रिजल्टेंट वेक्टर इज इन द ऑपोजिट ऑर्डर. Sir, done. ओके ओके नाउ विल डिस्कस. अगर हमको a वेक्टर और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है और इसके बीच में एंगल पता है, देन हाउ विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. ओके सो वी नो मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ a वेक्टर, we know length of b vector, and we know what about the angle between this a vector and b vector. So rm is to find out what about the value of resultant vector. So पहले हमने
इसको ऐसा लिखा है कि we can just consider that a vector over here, then b vector over here are taken as the adjacent sides of a triangle. Then the third side, which is taken in the reverse order, will give the value of resultant vector. तो हमको find out करना है a r का length क्या है, a और b का length पता तो, and we know the angle between a vector and b vector. So angle between a vector and b vector is given as nothing but theta. मतलब अगर आप इसको extend a को extend करेगा, so we can write this will be the value of angle between this a vector and b vector. तो a angle है nothing but angle between a vector and b vector, same as like this, and you can write that is equal to theta. अगर a angle theta है तो what about this angle? A angle क्या हो गया? A 180 minus theta. 180 minus theta. 80 minus Okay. theta. So we can write this is equal to pi minus theta. Pi radians is nothing but 180 degree. So we can write this nothing but 180 minus theta. Okay. Now our aim is to find out the value of r. A का value पता है, b का value पता है और r का value find out करना है. तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट कोसाइन रूल. अगर दो साइड पता है और दोनों साइड के बीच में एंगल पता है, देन हाउ विल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अदर Yes, साइड. तो इक्वेशन क्या था? a r स्क्वायर है, उसके लिए इक्वेशन R क्या आएगा? square is equals to a square plus b square Minus 2ab माइनस minus 2ab minus cos of 2ab r. cos of r. cos of R. R. cos of r का ऑपोजिट एंगल क्या है? थीटा माइनस Theta 180 minus theta. 180. 180 minus theta. Okay, yeah. So we can write the value of r square is equal to a square plus b square minus 2ab into what is cos 180 minus theta? 90. Nine. No, sir. No. No, sir. No. Okay. 120 sir. Sin Okay. theta. 120. Yeah. Yeah. तो Cos. थीटा पता रहेगा तो फिर पता चलेगा ना. थीटा थोड़ी पता है अपने को. ठीक है ठीक है ठीक है. छोड़ दो. ये cos 180 minus theta का वैल्यू रहता है. It is nothing but minus cos theta. Okay. We'll discuss about that how it is came. Okay. So you can write the value of this r square is equal to nothing but a square plus b square minus 2ab into minus cos theta will get us plus Plus 2ab cos b theta. cos theta. So you can write the magnitude of this resultant vector will be equal to under root of a square plus Plus b square plus 2ab cos cos theta. theta. This one is a way we'll find out the value of its magnitude. Okay. Just write down this one. Sir, can you please explain once more why did we take that angle as pi minus theta? Yes. Pi का meaning है 180 degree. Okay. Okay. Pi in radians. We are writing 180 degree. Okay. Okay, sir. Okay, समझा. तो explain करना है कि समझ में नहीं आया? सर समझा. समझा. 180 degree is nothing but pi radians. तो radians के हिसाब से हमने इसको लिखा है. So can you explain that how pi minus theta is equals to minus cos theta? Yeah. I'll explain. Yes, sir. Yeah. उसके लिए थोड़ा time Sir, लगता है. because in second coordinate cos is minus. Yes. सबको मालूम नहीं होगा. I'll explain. Sir. हो गया? लिख दिया? Yes, sir. Okay. अभी along with this हमको find out करना है तो इसका magnitude हो गया. Direction भी find out करना है. Direction मतलब in question they'll ask to find out what about the value of angle made by this resultant vector with respect to a vector. Let's say I'm just taking this angle is equal to alpha, or resultant vector with respect to b vector. I'm just taking this angle is equal to beta. तो ये तो अल्फा और बीटा का वैल्यू हम लोग वो साइन रूल से कर सकता है. Yes, So sir. according to sine rule हमने ऐसा लिखा था. That is, let's say if I'm B taking upon sin beta. yeah ऐसा. If I'm taking side A, so we can write as A divided by A का जो opposite side का जो angle है, which we can take as Sin- nothing but
sin beta sin 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 beta. beta is equal to nothing but b divided by b divided by Sin sin because alpha. alpha. of sin alpha is equal to nothing but r R divided by divided by sin into sin theta 180 minus minus 180 minus Pi theta. minus theta. pi minus Yeah. theta. That Yeah. So we can write this equal to a divided by sin beta is equal to b divided by sin alpha is equal to r divided by sin 180 minus theta का वैल्यू sin theta होता है. अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. अभी जस्ट राइट डाउन दिस, ठीक है. तो साइन रूल यूज करके हम लोग एंगल फाइंड आउट करता है, कोसाइन रूल यूज करके ए आर का वैल्यू मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करता है. okay, sir. So done. Just a second, sir. मशीन ऑन झाली. Done, sir. Okay. अभी हम डिस्कस करेंगे ये मतलब ये 180 माइनस थीटा cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा क्यों होता है, sin 180 माइनस थीटा sin थीटा क्यों होता है, एक्सेट्रा. ओके. So I think you have a basic knowledge about the quadrant system. Yes, sir. Yes, sir. Like whenever we are Okay. measuring theta, we are measuring from the our reference line है positive direction of x-axis. And हम लोग theta measurement करता है from positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग थीटा मेजरमेंट करता है, ताकि वी कैन से दैट दिस ये जो पॉइंट है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसके लिए थीटा का वैल्यू हो गया 0. और ये जो पॉइंट है ये जो वाई एक्सिस आएगा उसमें एंगल का वैल्यू रहेगा 90 डिग्री, एंड ये जो पॉइंट आएगा उसका एंगल रहेगा 180 डिग्री, एंड ये पॉइंट का एंगल रहेगा दैट इज इक्वल टू 270. अगर वापस ये पॉइंट में आएगा तो ये हो जाएगा 360. ठीक है. 60 degree. तो 0 और 360 सेम है, बाकी 90 180 270 एक्सेट्रा. नाउ वी नो दैट दिस इज नोन एज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड दिस इज आवर सेकंड क्वाड्रेंट, this is our third quadrant, Third quadrant. and this is That our is fourth fourth. Fourth quadrant. quadrant. Yes, sir. Okay. Now first quadrant में all thetas are positive. Positive. That means आप अगर sin theta दिखेगा, मतलब first theta में first quadrant में जो एंगल का वैल्यू है वो 0 से ज्यादा रहेगा और 90 से कम रहेगा. ठीक है. तो इन दिस क्वाड्रेंट ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटास आर पॉजिटिव, मतलब आप sin 60 डिग्री लेगा, cos 60 डिग्री लेगा, tan 60 रहेगा, वो सब पॉजिटिव वैल्यू है. सो ओवर हियर विल से दैट ऑल थीटास आर पॉजिटिव, ओके, फॉर एनी वैल्यूज बिटवीन 0 to 90. देन 90 to 180, इधर थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा रहेगा, 180 से कम रहेगा, लेट्स से 120. तो ओवर हियर सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली sin थीटा पॉजिटिव रहेगा, मतलब sin 120 का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, cos 120 नेगेटिव रहेगा, tan 120 भी नेगेटिव रहेगा, बाकी जो भी रेसिप्रोकल रहेगा वो भी नेगेटिव रहेगा. Yes. तो sin का रेसिप्रोकल है cosic, तो ये केस में sin और cosic पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा. ओके. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव रहता है और cot थीटा पॉजिटिव रहेगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 से ज्यादा और 270 से कम. Excuse me, sir. मतलब बोलो बेटा. तो सर सेकंड क्वाड्रेंट में cos और sec दोनों नेगेटिव रहेंगे. या cos भी नेगेटिव रहेगा, cos sec मतलब cos tan sec and cot are Okay, negative. sir. Okay, sir. है ना. If sin theta is negative, then reciprocal of sin theta will also be negative, right? Okay. Yeah. Now third quadrant में 180 से ज्यादा रहता है, 270 से कम रहता है, let's say 200 ले लो. तो अगर आप sin 200 लेगा तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, cos 200 नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, बट tan 200 will get a पॉजिटिव वैल्यू. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में उसमें cos थीटा पॉजिटिव रहता है. ठीक है. सो ओवर हियर ये 270 से ज्यादा रहेगा, 360 से कम रहेगा, लेट्स से एट एन एंगल ऑफ 300.
तो साइन 300 नेगेटिव रहेगा, कॉस 300 पॉजिटिव रहेगा, tan 300 पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव Okay. रहेगा। समझ में आया इतना पार्ट? यस सर। ओके Yes, sir. सर थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव रहेंगे ना? हाँ, tan और cot पॉजिटिव, मतलब और उसका second- रेसिप्रोकल होगा। सेकंड सेकंड में क्वाड्रेंट में sin और cosec साइन और कोसिक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, और Fourth फोर्थ quadrant में- क्वाड्रेंट में cos। कॉस एंड सी। ओके 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 सर, अंडरस्टूड। अभी हम लोग को देखना है कि अभी इसको याद रखने के लिए हम लोग ऐसा भी एक मेथड यूज करते हैं, लाइक ASTC, ठीक है, ऑल साइन टी टैन एंड कॉस, और इसको भी कुछ वर्ड यूज करते हैं कि ऑल सिल्वर टी कप, ठीक है, ऑल सिल्वर टी कप, ऐसा कुछ आपको अपना अपना जो भी मेथड यूज कर सकते हैं इसको याद रखने के लिए, ठीक है, और ASTC रूल बोलते हैं इसको। नाउ अभी आप देखना है कि हम लोग ऐसा लिखता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू थीटा है उसको आप 0 प्लस थीटा लिख सकता है और 90 माइनस थीटा लिख सकता है। याद रखना है वो थीटा का वैल्यू है वो 90 से कम है, समझा? So और सेकेंड क्वार्टर में हम लोग क्या लिखेगा, 90 plus theta and 180 Theta. minus theta. 180 माइनस थीटा, ये दोनों किधर आएगा, सेकेंड क्वार्टर पे आएगा। नाउ वी Yes, कैन sir. राइट थर्ड क्वार्टर में क्या लिखेगा, 180 plus theta 180 plus theta theta and 270 minus theta. 270 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 plus theta and 360 minus theta. theta. 360 minus theta, Or okay? we can write 0 minus theta also, right? Yeah, 0 minus theta also, yes. Yes. So we can write 0 minus theta also, okay? अभी हम लोग जो भी क्वेश्चन आएगा वो मतलब जो भी सिचुएशन में ये सब का टर्म में लिखता है, ओके? मतलब इफ इट इज, याद रखना है, इफ इट इज 0 प्लस और माइनस थीटा और 180 प्लस और माइनस थीटा, मतलब हमने क्वाड्रेंट सिस्टम में देखे तो इसका ये पॉइंट का और ये पॉइंट का बात कर रहा है, ओके? 0 प्लस और माइनस थीटा और 180 प्लस और माइनस थीटा आ गया, और सेकेंड पार्ट होता है 90 प्लस और माइनस थीटा और 270 प्लस और माइनस थीटा, वो y axis की बात। या तो 0 प्लस और माइनस हमने 360 प्लस और माइनस भी लिख सकता है, दे आर सेम, ठीक है? तो 0 प्लस और माइनस थीटा या 180 प्लस और माइनस थीटा और 360 प्लस और माइनस थीटा, और सेकंड है ये पार्ट का 90 और 270 का, 90 प्लस और माइनस थीटा और 270 प्लस और माइनस थीटा, ओके? अब याद रखना है, इफ यू आर राइटिंग 0 प्लस और माइनस थीटा और 180 प्लस और माइनस थीटा, तो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा रहेगा, tan थीटा रहेगा, मतलब उसका कुछ चेंजेस नहीं रहेगा, ओके? सो इफ यू आर राइटिंग इट एज लाइक 90 प्लस और माइनस थीटा और 270 plus or minus theta, then sin theta will change to cos theta Cos theta. and cos theta will change to sin theta and tan theta will change to cot theta. Cot theta. Okay, इतना याद रखना है, sin theta will change to cos theta will change to sin theta and tan theta will change to cot theta. That और means सर 360 प्लस और माइनस थीटा में क्या होगा? ये जैसा ही है, मतलब 0 प्लस और मतलब 360 और 0 तो सेम ही पॉइंट है ना। हाँ, अच्छा ठीक। या सो वी कैन राइट कि साइन 90 प्लस 270 में चेंजेस होता है, बाकी में साइन थीटा ऐसा ही है, मतलब इसका मीनिंग है सपोज इफ आई एम राइटिंग साइन 90 प्लस थीटा तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस में कन्वर्ट Sin रहेगा, theta. इट बिकम्स इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है? यस If I am writing cos of 270 plus theta, तो cos theta क्या होगा, sin theta में साइन कन्वर्ट थीटा होगा, कन्वर्ट। ठीक है? तो And सर if I am इसमें writing tan of एंगल के रिलेशंस लेना है। एक मिनट, अभी ये तो ठीक है, 90 प्लस अगर 90 माइनस थीटा लिखेगा तो भी क्या होगा, tan थीटा cot थीटा में साइन चेंज थीटा होगा, रहेगा कॉट। ठीक है? तब ये वाले 90 प्लस और माइनस 270 प्लस और माइनस में साइन cos में कन्वर्ट होगा, cos sin में कन्वर्ट होगा, tan cot में कन्वर्ट होगा। और सर कॉट, अभी साइन नहीं, cot उल्टा tan में कन्वर्ट होगा सर। अच्छा तो
अभी आपको ये देखना है कि इसमें जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. मतलब sin 90 प्लस और माइनस थीटा कैन बी प्लस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा. ये भी प्लस और माइनस हो सकता है. अभी हमको देखना है प्लस होगा कि माइनस होगा, वो डिपेंड करता है कि कौन सा क्वाड्रेंट में है. ओके, सो अभी इसको आप ऐसा देखना है कि सपोज इफ आई एम राइटिंग साइन 0 प्लस थीटा. ठीक है, तो साइन 0 प्लस थीटा उसका वैल्यू आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव होगा. नहीं, उसका आंसर क्या है? आंसर साइन थीटा होगा, आंसर कॉस sin थीटा थीटा ही आएगा. साइन थीटा ही आएगा. ठीक है, उसके बाद आप देखना है साइन 0 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट फर्स्ट First. क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट में होगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर सब Positive. पॉजिटिव है. सब पॉजिटिव पॉजिटिव है. तो इसका आंसर क्या आएगा? प्लस साइन थीटा. प्लस साइन थीटा. समझ में आया? यस. यस सर. ठीक है, नेक्स्ट अगर देखो इफ आई एम राइटिंग cos 0 प्लस थीटा, तो cos 0 प्लस थीटा लिखा है तो इसका आंसर Plus क्या रहेगा? cos cos theta. थीटा ही रहेगा. पॉजिटिव कॉस थीटा. और हेलो. Hello, sir. Hello, mic testing. 1, 2, 3. Hello, sir. Hello, mic testing. 1 2 3 1 2 3. Hello, sir. Hello, sir. There might be some connection issue. I'll wait. Hi, Shinu. Hi. कुछ कनेक्शन एरर हो गया या 1 मिनट. सभी देखते हैं tan 0 प्लस थीटा. tan 0 प्लस थीटा क्या रहेगा? tan Plus थीटा tan तो रहेगा theta. या तो वी कैन राइट एंड फर्स्ट क्वार्टर में है तो पॉजिटिव है तो वी कैन राइट दैट इज इक्वल टू प्लस tan थीटा. गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. अभी अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या हो जाएगा? वी कैन राइट सपोज इफ इट इज sin 90 माइनस थीटा. sin 90 माइनस थीटा. ओके, Plus sin theta. Plus sin theta. नहीं नहीं नहीं, 90 माइनस लिखा है. 90 प्लस और माइनस में साइन कॉस में कन्वर्ट होगा. तो cos Yes sir. theta हो Yes sir. जाएगा. Yes. Cos theta sir. cos थीटा. उसके बाद आप देखना है ये बेस वैल्यू को देखना है. ये cos मतलब राइट साइड का वैल्यू नहीं देखना है. हमने कौन किसका वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ढूंढ रहे वो देखना है. तो Plus cos cos 90 theta. माइनस थीटा. cos 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है? First. फर्स्ट First. क्वाड्रेंट. प्लस sin Plus cos theta. तो वी Positive. कैन राइट या पॉजिटिव आना चाहिए तो प्लस cos थीटा. गॉट इट? तभी बोलो cos 90 minus theta. What is answer? Plus sin theta. Sin Theta. Plus Sin sin theta. theta. Because sin theta हो जाएगा because cos sin में convert होगा. But first quarter में तो all thetas are positive. So the answer is plus sin theta. Like that tan 90 minus theta. What is answer? Plus Plus cos cos theta. Cot Plus theta. cot theta. theta. Cot प्लस theta. cot थीटा. Got it? किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लेना.
नेक्स्ट वन हम लिखते हैं साइन ऑफ 90 प्लस थीटा. बोलो. प्लस साइन minus थीटा cos. minus Sin- cos theta. सर पहले प्लस देखना cos कि थीटा साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं, होगा नहीं, कि नहीं. कन्वर्ट तो होगा तो Cos कॉस थीटा. theta. माइनस कॉस थीटा minus नहीं cos. नहीं, एक मिनट. प्लस cos थीटा आएगा. अभी देखो कॉस थीटा तो आ जाएगा. उसके बाद देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. तो 90 प्लस थीटा कौन सा Positive. क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड. सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव है. यस. Yes, sir. तो साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव है. पॉजिटिव cos थीटा. ठीक है. तो यू कैन राइट प्लस कॉस थीटा. अब राइट साइड का वैल्यू नहीं देखना है, कॉस को नहीं देखना है, साइन को देखना है. किसका वैल्यू हम लोग ढूंढ रहे हैं? हम लोग साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू ढूंढ रहे हैं. ओके. ओके. So it should be a positive value. The answer is plus cos theta. Now we can write as cos of 90 plus theta. What is the answer? माइनस Plus साइन sin थीटा. theta. माइनस sin थीटा. Minus sin theta. Because sin theta तो आएगा, but cos second quarter में negative है. The answer Negative. will be equal to minus sin theta. Okay. Yes, Now sir. we can take it as tan 90 plus theta. What is the value of tan 90 plus theta? माइनस कॉस Minus Plus cot cot theta. माइनस cot थीटा. Minus cot theta. Yes. Now we'll go for next one. That is sine of 180 minus theta. Bolo, what is the answer? Minus Minus cos cot theta. theta. Minus cos Minus theta. cos theta. Minus Plus- cos theta. प्लस पहले sin देखो- थीटा ना. Minus cos Yeah. प्लस theta. sin थीटा. पहले देखो cos में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. Minus नहीं sin होगा. theta. नहीं हाँ होगा. 90 नहीं 180 है तो उसका साइन ही रहेगा. साइन हाँ ही तो रहेगा. साइन रहेगा. Sin साइन रहेगा. रहेगा. माइनस साइन थीटा. अभी देखना है नहीं, सेकंड. ये positive कौन सा रहेगा. क्वाड्रेंट में है? कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट में है? क्वाड्रेंट. Third Third. quadrant. नो 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 180 माइनस Second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में Second साइन quadrant. पॉजिटिव है. पॉजिटिव होता तो आंसर क्या आएगा? प्लस Plus साइन sin. थीटा. प्लस साइन. समझा? सर Yes, अगर sir. पॉजिटिव साइन मेंशन नहीं किया तो चलेगा. हाँ चलेगा. मतलब नेगेटिव साइन तो मेंशन करना चाहिए. कुछ मेंशन नहीं किया तो क्या पॉजिटिव है ना. हाँ. Now we can write as cos of 180 minus theta. What is cos 180 minus theta? माइनस कॉस थीटा. माइनस cos माइनस cos थीटा. थीटा. Minus cos theta. Yes. So we can write over here, this will be equal to minus of cos theta. Got it? सर Now we can take it as it is tan 180 minus theta. What is tan 180 minus theta? tan थीटा. tan थीटा. माइनस tan थीटा. माइनस tan Minus थीटा. tan theta. Because second quarter में only sin positive है. Okay? अभी हम लोग देखते हैं next one. वो क्या रहेगा कि sin of 180 plus theta. तो क्या रहेगा आंसर? माइनस sin थीटा होगा ना. माइनस Yeah. साइन थीटा. Plus sin पहले theta. वैल्यू होगा sin theta because 180 प्लस और माइनस लिखा है. एंड 180 प्लस मतलब क्या हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया. थर्ड क्वाड्रेंट तो quadrant. माइनस. थर्ड क्वाड्रेंट में Minus. only tan theta is positive. So sin theta is negative. So the answer is minus sin theta. Now you can take it as sin 180, cos 180 plus theta. What is the answer? So it माइनस will कॉस be थीटा. minus cos theta. Minus cos theta. So you Plus can ना? take it as cos माइनस का थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट है. Quadrant. तो प्लस cos थीटा. अरे tan theta ही पॉजिटिव है tan होता है ना. ना उसमें पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में से tan पॉजिटिव है. नहीं सर कॉट भी पॉजिटिव होता है ना थर्ड क्वाड्रेंट में. कॉट होता है कॉट. कॉस तो भाई tan और cot ये- दोनों ना रेसिप्रोकल है. ASTC. समझा? हाँ हाँ. All silver teacup. So we can take it as it is tan 180 plus theta. What is the answer? Plus cot theta. प्लस cos Plus Plus tan theta. tan Tan theta. theta. Change नहीं होगा. tan थीटा. Yeah. Okay. I'll go for the next part, which is, let's say, sine of 270 minus theta. What is the answer? माइनस कॉस. माइनस cos थीटा. Minus cos theta. Very good. तो ये होगा only tan positive रहेगा इसमें. तो 270 लिखा है तो sin cos में convert होगा. Now we can take it as cos of 270 minus theta. What is the माइनस answer? साइन थीटा. माइनस sin थीटा आएगा. Minus sin theta. अभी tan of 270 minus theta. What is the answer? प्लस कॉस थीटा. Plus कॉट थीटा. Plus cos cos theta. cot थीटा. सर कॉट थीटा. Plus cot. Cot theta. Cot theta. Cot theta. Cot, Plus cot. cot theta. Okay. फिर लिखते देखते लास्ट sir. पार्ट को. तो sin of 270 plus theta. What is the answer? माइनस साइन थीटा. minus sin. Plus Minus Yeah. cos theta. माइनस cos थीटा आएगा. minus Yeah. minus 270 sin लिखा Cos है theta. तो cos theta में तो कन्वर्ट 270 है ना बेटा.
तो साइन कॉस में कन्वर्ट रहेगा। ओके हाँ अभी देखना है कौन सा क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली cos थीटा इज माइनस पॉजिटिव, तो sin थीटा नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस cos थीटा। नाउ वी कैन राइट cos ऑफ 270 प्लस थीटा। बोलो व्हाट इज आंसर? sin थीटा प्लस sin थीटा Plus sin theta. plus sin theta. Yes, sir. इसमें plus. So we can write as plus sin theta. Now we can take it as tan of 270 plus theta. What is the answer? Minus cot minus theta. cot Minus theta cot Minus Theta. cot theta. Got it? Now we can write the last part, which is a 360 minus theta, yeah, 360 minus 180 or 0 minus theta. Okay. If it is sine of 360 minus theta, what is the answer? Minus minus sin theta minus sin theta. Minus sin theta. 360 प्लस और माइनस है तो sin थीटा तो cos में कन्वर्ट नहीं होगा, और ये जो फोर्थ क्वार्टर में आएगा, फोर्थ क्वार्टर में only cos theta is positive. Now cos of 360 minus theta, what is the answer? plus cos theta Plus cos theta. Plus cos theta. Now we can write tan of 360 minus theta. What is the answer? minus tan theta Minus tan तो theta. आपने sin 270 plus theta में minus cos theta क्यों लिखा था? Sin 360 minus No sir, sin 270 plus theta. You हाँ। need minus cos theta. 270 प्लस और माइनस लिखे तो sin cos में कन्वर्ट होगा। हाँ पर पॉजिटिव आएगा ना cos theta तो। नहीं नहीं, cos थीटा पॉजिटिव आएगा ऐसा नहीं है, ये sin इज अ बेस। ठीक है, sin 270 प्लस थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव वो देखना है, समझा बेटा? हेलो, Yes, sir. क्या साइन को देखना है, ये बेस को देखना है, इसको नहीं, ये कॉस को नहीं देखना है, ये साइन को देखना है। गॉट इट? Yes, sir. हम लोग मतलब हम लोग साइन 360 का वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो देख रहा है। साइन 360 को साइन 270 प्लस 30 लिख सकता है, तो क्या हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा, बट उसका बेस क्या है, साइन है, तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ऐसा Yes. अभी जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसका वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, लाइक आपको याद रखना पड़ेगा, आपको ऑलरेडी पता होगा, मतलब 0 30 60 45 90। ठीक है, सो वी कैन जस्ट राइट दिस पार्ट। हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक साइन थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए। 4 थीटास ऑफ वैल्यूज लाइक 0 30 डिग्री 45 45, 60, 90. डिग्री। अच्छा ओके 37 37 में 53 will come no उस पे भी लिखते हैं, या 45 डिग्री 60 डिग्री 90 degree 90 डिग्री और 53. एंड along with that 37 and 37, 53. 53 या ये भी याद रखना है, 37 का और 53 का। ठीक है, तो I think you know that the value of sin 0 is nothing but 0 0. cos 0 is Cos cos 0 30 is sorry 1, sin 30 is sin 30 1/2. half 1 by 2, cos 45 sin 45 is 1 1/√2. 1 by root 2, and sin 60 is Root 3 3 upon 2 root 3 by 2, sin 90 is 1. 1 तो cos में क्या किसको उल्टा ही लिखता है, हाँ सर. मतलब root ये 3 by 2 90 या ये हो जाएगा root 3 divided by 2, 1 by ये root हो 2 जाएगा हाँ, 1 by root 1 2, by root ये हो 2 जाएगा 1 1 by upon 2, 2 ये हो जाएगा 0। 0 एंड tan में क्या होगा, sin by cos होगा, तो 0 by 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0 1 by 2 by 1 by root 3 1 1 by upon root 3, √3. तो हो जाएगा 1 by root 3 हो जाएगा। 1 1 by root 2 by 1 by root 2 1, root 3 by 2 3. by 1 by 2, so this is root 3, and 1 by 0 is Infinity. infinity। Infinity. ठीक है, अभी along with that 37 और 53 का भी वैल्यू याद रखना है, ये हमारा बहुत सारा क्वेश्चन में आता है। तो 37 और 53 में ऐसा रिलेशन है, सपोज इफ यू आर हैविंग अ ट्रायंगल विथ साइड्स 3 4 and 5 है ना, अगर यू आर हैविंग अ राइट एंगल ट्रायंगल
तो 3 और 4 है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम दूसरा साइड क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल का बात कर रहा है। Yes, yes, yes. तो ये जो 4 का जो ऑपोजिट एंगल है वो रहेगा नथिंग बट 53, नहीं 53, हाँ सर, एंड 3 का जो ऑपोजिट एंगल है वो रहेगा 37, 37. ठीक है। तो हम लोग देखते हैं साइन 37 का वैल्यू क्या होता है। साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट साइड व्हिच इज Opposite 3 upon hypotenuse. hypotenuse, so we can take it as this 3 divided by 5. 5. Now we'll go for cos 37. What is cos 37? Adjacent upon hypotenuse. Adjacent upon hypotenuse, that is 4 divided upon by five. 5. And tan theta क्या होता है, opposite side by So adjacent side, reciprocal by value. 3 by 3 upon 4. 4, 3 by 4, 4. Now we'll go for sin 53. Sin theta होता है 4 by 5. opposite 4 4 by by 5. 5. So we 4 can by take it 5. as this 4 by 5. Cos theta 3 by 3 by 5. 5. 3 by 5. 3 by 5. And tan theta 4 by 4 3. by 4 by 3. 4 by 3. Okay. So you should remember these values. Just write down this one. सर राइट एंगल ट्रायंगल में यही साइड के मेजरमेंट यही लेंगे ऐसा जरूरी थोड़ी ना, कुछ और भी तो हो सकते हैं ना, जैसे कि क्या बेटा? 6, 8 और 10 सर। या वो भी हो सकता है, मतलब 6 8 10 भी हो सकता है, बट रेशियो करें तो यही आंसर ही आएगा ना। Sir, why have we taken sides at 3, 4 and 5? ये हमारा मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में ये वैल्यूज यूज करता है, इसलिए ऐसा बहुत सारा एंगल है, बट हमेशा ये कैलकुलेशन में 3, 4 और 5 बहुत ज्यादा ही देता है, इसलिए इट इज बेटर टू रिमेम्बर दैट। Sir, बोलो। sir, suppose if they give any other Pythagorean triplet, so then we have to see that figure and हमको that- हर एक चीज याद रख नहीं सकता है, तो एटलीस्ट इतना तो याद रखना पड़ेगा, बाकी का नहीं आएगा, मतलब बाकी का नॉर्मली नहीं पूछता है। Okay, sir. ये इतना एंगल का नॉर्मली पूछता है और सर अलावा इसका नहीं कोई पूछता। मेथड नहीं है निकालने का, मतलब कोई मेथड जिससे नहीं सब नहीं 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 नहीं, ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसा मतलब निकाल तो नहीं सकता है। मतलब आप लॉग टेबल यूज करके निकाल सकता है, लॉगरिथमिक टेबल यूज करके निकाल सकता है, अदर देन दैट देयर इज नो मेथड। तो बोर्ड एग्जाम में क्या होगा कि आपका जो एग्जाम के साथ एक लॉगरिथमिक टेबल भी देगा, उसमें सब वैल्यूज रहता है, तो बोर्ड का एग्जाम में आप यूज कर सकता है, बट आईआईटी का एग्जाम ऐसा कुछ ये लॉगरिथमिक टेबल नहीं देगा, तो ये एंगल से ही आपको पूछेगा। हो गया, लिख दिया? यस Yes, sir. Okay. Now we'll discuss about इसका हमने मतलब applications कैसे करता है, like suppose our aim is to find out the value of sin 300. sin 300 का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो sin 300 का वैल्यू तो हमको डायरेक्टली पता नहीं है, तो देयर आर टू 360 मेथड्स। minus 60. या आप 360 माइनस 60 लिख सकते हैं, या 270 प्लस 30 लिख सकते हैं, 270 आपके plus ऊपर, 30 also. ठीक है। सो अगर मान लो आपने, बिकॉज हमको 30 60 90 वो सब पता है, तो उसी का फॉर्म में लिखना है, तो व्हाट विल राइट, इट इज 270 प्लस 270 प्लस 30 लिख सकता है, बिकॉज हमको साइन 30 का वैल्यू मतलब 30 का वैल्यू पता है। फिर आप देखना है 270 प्लस थीटा लिखा है, मतलब साइन 300 कौन सा क्वाड्रेंट में आता है? Third 300 कौन सा- Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? फोर्थ क्वाड्रेंट या इधर 270 है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा आएगा, या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो दिस शुड बी अ नेगेटिव वैल्यू। एंड 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है, minus cos theta. या तो यू कैन राइट माइनस cos 30। सो cos 30 का वैल्यू क्या है? cos 30 का वैल्यू क्या है? cos 30 का वैल्यू है Cos 3 by 2. root 3 by 2 minus root 3 by 2. तो फाइनल आंसर क्या आएगा? माइनस रूट 3 by 2। समझा? रूट के अंदर माइनस साइन नहीं हो सकता क्या? होता है, उसको इमेजिनरी वैल्यू बोलता है। रूट ऑफ -1 को आयोटा बोलते हैं और इमेजिनरी बोलता है।
Okay, so ये सर 3i कुछ बोलते हैं ना उसको, फिर आयोटा। हाँ 3i I equals to minus root. तो अभी अब देखो माइनस ऑफ रूट 3 इंटू 2 रूट 3 बाई 2 ओके। और एक और मेथड है, अगर आपको ऐसा भी लिख सकता है सेम चीज को, साइन ऑफ 360 माइनस 60 भी लिख सकता है। तो भी हमको पता है कि ये तो फोर्थ क्वार्टर में आने वाला है तो नेगेटिव वैल्यू तो आएगा। साइन 360 माइनस 60 क्या होता है? माइनस sin 30। साइन 60 हाँ वही है ना। वो भी साइन 60 माइनस तो भी क्या आएगा? माइनस रूट 3 बाई 2। अब कैसे तो भी लिखो, आपको आंसर मिल जाएगा। गॉट इट? सो दिस वन इज अ वे लाइक हमने इसको वो पहले हमने जो किया था उसको यूज करता है। ओके ओके so now we'll discuss about next part which is nothing but subtraction of vector। भी हमने addition of vector किया है triangle rule use करके। now by using the same triangle rule I will discuss how to subtract two vectors। so you can write the heading subtraction of vectors। Sir, can we use logbook to find the answer, to find the values? if you are having a logbook then you can use it, Yes, sir. but in JEE mains exam logbook is not allowed, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब बोर्ड्स के एग्जाम में लॉगबुक देगा तो उसमें से आप निकाल सकता है। So you can write subtraction of vector। subtraction of vector में actually we don't have any specific method for subtraction of vectors, so we are doing it same as like addition। okay मतलब suppose our aim is to find out a vector plus b vector, sorry a vector minus b vector, a vector minus b vector करना है। बट ऐसा कुछ स्पेसिफिक मेथड नहीं है a माइनस बी का, तो हम लोग क्या करेगा, a माइनस बी को ऐसा लिख सकता है दिस b इज को a तो चेंज वेक्टर कर देंगे। प्लस माइनस ऑफ b वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेगा, a के साथ माइनस b वेक्टर को ऐड करेगा, तो इट इज सेम एज लाइक डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा ना। उल्टा हो जाएगा। यस यस, तो व्हिच इज नथिंग बट a वेक्टर माइनस b वेक्टर व्हिच इज a वेक्टर प्लस माइनस ऑफ b वेक्टर। गॉट इट? तब देखा इसका मीनिंग क्या है। तो इसका फिजिकल मीनिंग है, सपोज इफ आर एम इज टू फाइंड आउट a वेक्टर माइनस दिस b वेक्टर, तो इट इज सेम एज लाइक वी आर गोइंग फॉर a वेक्टर प्लस माइनस ऑफ b वेक्टर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस किया था, समझ लेंगे नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर मींस अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। सो a हो जाएगा हमारा माइनस b वेक्टर। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट a वेक्टर माइनस b वेक्टर, गो फॉर a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अभी हम देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढना है और डायरेक्शन कैसे ढूंढना है। सो यू कैन राइट अंडर द हेडिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, यू कैन राइट सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, subtraction of two vector means addition of negative of a vector, addition of negative of a vector to another vector, so we can represent it like this: a vector minus b vector is equal to a vector plus minus of b vector। b वेक्टर लिख दिया? यस सर। क्या अभी हम देखते हैं इसको ट्रायंगल रूल यूज करके कैसे करना है। तो वी आर हैविंग अ वेक्टर, लेट्स से a वेक्टर and another vector, take it as b vector। we are having a vector and b vector, and this angle between a vector and b vector we can take it as nothing but theta। so let's say angle between a vector and b vector which is equal to nothing but theta। okay, so we know that angle between two vectors is angle between them when their tails are connected, but our aim is to find out
what about the value of A vector? Srinu, respond. Yes, sir. Nothing. So A vector minus B vector करना है. So we can write this is A vector minus B vector is A vector. A minus B vector करना था plus minus of B vector. Minus of B vector means a vector of same magnitude but opposite direction. तो हो गया A vector plus minus of B vector. ठीक है? Now we can go for this vector addition. Okay? तो पहले क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट जो वेक्टर है उसको एज इट इज ड्रॉ करना पड़ेगा. तो ये वेक्टर को ऐसे ड्रॉ कर दिया. देन क्या करना है? बी वेक्टर, टेल ऑफ बी वेक्टर शुड बी इन अटैच विद द हेड ऑफ ए वेक्टर. तो बी वेक्टर का जो टेल है वो हेड ऑफ ए वेक्टर के साथ अटैच करके रखा है. सो वी कैन से दैट दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ आवर रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर. ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर. अभी देखते हैं ए इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है. तो एक्चुअली वी कैन से दैट ए वेक्टर और एक्चुअल जो बी वेक्टर है उसके बीच में जो एंगल था व्हिच वाज नथिंग बट थीटा. सो वी कैन से दैट इफ दिस एंगल इज थीटा दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू थीटा. थीटा. अभी हमको फाइंड आउट करना है फ्रॉम दिस ट्रायंगल व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ आर. सो आर का वैल्यू क्या होगा अकॉर्डिंग टू कोसाइन रूल? सर आर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू a square plus b square minus minus of 2ab 2ab cos of r. cos of theta, cos theta. Cos theta, sorry. So you can write r will be equal to under root of a square plus b square minus 2ab cos theta is a value of resultant vector or is a value of r vector. Got it? तो a plus b में क्या आ रहा था? a square plus b square plus 2ab cos theta आ रहा था. a minus b में a square plus b square minus 2ab cos theta आ रहा है. Got it? So just remember about this part. And अभी हमने a भी find out कर सकता है. What about the angle made by this a vector with respect to resultant vector? मान लो this angle है alpha. अगर आप उसको alpha का value find out करना है और ये जो बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम उसके लिए भी रिलेशन लिख सकता है. वो क्या है? साइन रूल के हिसाब से लिखेगा. हाँ सर b तो upon विल राइट sin एज theta. या कि a डिवाइडेड बाय a का जो ऑपोजिट साइड था वो बीटा था. तो A a ऑफ a साइन of बीटा sin of beta इज इक्वल टू b ऑफ sin of b of sin alpha alpha is equal to r R divided of by sin q. sin theta. sin Okay. So write down this one. पहले आप ये दो पार्ट दो वेक्टर को ड्रॉ करना है. ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है. फिर आप दिखाना है कि इसका डायरेक्शन क्या है. सॉरी एंगल क्या है? एंगल बिटवीन द वेक्टर इज एंगल बिटवीन देम व्हेन देयर टेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर. Sir, can you show the sine and cosine rule which we have done below? या पहले लिखने दो सबको. देन डायग्राम ड्रॉ करना है.
Done, sir. Okay. हो गया? लिख दिया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. So basically, just remember the difference in equation for a plus b and a minus b. So if you are going for a vector plus b vector, if I can say that if r vector is equal to a vector plus b vector, then the value of magnitude of this r will be equal to under root of a square Square plus b b square plus b plus square plus 2ab cos theta. 2ab cos ab cos theta. And if you are going for r vector, which is basically a vector minus b vector, then the value of r will be equal to under root of a square a square plus b square b minus square 2ab cos 2ab theta. cos theta. 2ab cos theta. Got it? So just Yes, remember sir. about this Yes, part. sir. What do you mean by this a plus b and what do you mean by a minus b? ठीक है? और इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? Okay. So we'll Yes, sir. continue in next class. Thank you. Thank you, sir. Thank you, you, sir. sir.